In the previous lecture, we have seen the introductory part of chapter number 2, which is fundamental concept and terminologies. In this chapter of economics, we'll see some terminologies used in the subject economics. So, in the first class, we have discussed about price and value. Now, today we'll discuss about the word goods and services which are used in the subject. Now, what is good? So goods means the commodities which have physical existence are called goods. In economics, they are meant to satisfy the needs of consumption. ठीक है, goods are something which satisfy the human wants or needs of the people. Okay, and which has physical existence means जो physically exist करता है, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप touch कर सकते हो, means it has physical existence. It comes under the term goods. On the contrary, what is called service? So services are commodities which are intangible. Intangible means which cannot be seen, which cannot be touched. ठीक है, जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते हैं, and it also not having the physical existence means उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है physically, but it helps in satisfying the human wants. ठीक है, वो हमारे needs को तो satisfy करती है. In both the things which is common, what is common in both these two terms, it satisfy, both of them satisfy human wants. ठीक है, but in case of goods it has physical existence, and in case of service it do not have physical existence and it is intangible. Clear? Now if we take an example out of goods and services, so cooked food is an example of goods. ठीक है, आप उसे देख सकते हो, it has physical existence, जो खाना बना हुआ है उसे हम खा सकते हैं, so it is good. But if you are taking the food in restaurant, then the service which is provided by the restaurant, it comes under the word service. ठीक है, आप जब से हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि इसकी सर्विस अच्छी है, इसकी सर्विस अच्छी नहीं है. ठीक है, सर्विंग अच्छा है, तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ सर्विस ऑफ द रेस्टोरेंट, एंड द फूड दैट दे आर प्रोवाइडिंग इज फूड गुड्स. क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ इफ वी टेक अनदर एग्जाम्पल, देन the need for knowledge and curiosity is satisfied by the service of education. ठीक है, आपकी जो भी नॉलेज की नीड्स है, ठीक है, या फिर आपकी जो भी क्यूरियोसिटी है, अगर आपको उसको सेटिस्फाई करना है, देन यू विल टेक द एजुकेशन. बट क्या आप उसे देख सकते हैं? उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं. आप कैसे मेजर करोगे उसको? मेजर नहीं कर सकते हम उसको. ठीक है, हम केवल हमें सेटिस्फेक्शन होगा कि हमारा जो नॉलेज की जो नीड्स थी वो सेटिस्फाई हुई, हमें जो नॉलेज मिला उससे हमारी जो क्यूरियोसिटी थी वो सेटिस्फाई. ठीक है, सो वी कैन से दैट गुड्स इज सच विच कैन बी मेजर्ड कार्डिनली. कार्डिनली मीन्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, जिसे आप नंबर में मेजर कर सकते हो, वो क्या है? गुड्स. एंड सर्विस कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनल मीन्स उसे आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते. नाउ देर आर सम टाइप्स ऑफ गुड्स विच आर गिवन टू यू इन द टेक्स्ट बुक. सो फर्स्ट टाइप इज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल गुड्स. नाउ व्हाट इज टेंजिबल? सो सम गुड्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक बॉल, बैट, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, स्टोव, मोबाइल फोन एंड सो ऑन. These can be measured, whereas some goods do not have physical existence and cannot be measured cardinally, and those are called services. Means tangible में क्या include होगा? Goods which has physical existence. और intangible में क्या होगा? Services which do not have physical existence. Clear? So tangible means which you can see, which you can touch, and which has physical existence, and intangible means which you cannot see, which you cannot touch, and do not have physical existence. Now if we take an example, then in case of tangible, some goods which have physical existence means some assets. Television, if we talk about television,
you can see, you can touch, okay, it has physical existence. Then refrigerator. So all these items comes under the word tangible goods. And intangible means services. तो जो भी सर्विसेज हम लेते हैं वो सर्विसेज इसमें इंक्लूड होगा. फॉर एग्जांपल कंसल्टेंसी, मेडिकल कंसल्टेंसी, देन एजुकेशन, okay. Then if you are performing at some concert or some dance competition, then it is also intangible goods. Now another type is non-economic and economic. So goods which do not command exchange value are called non-economic. अब जैसे हमने प्राइस और वैल्यू का जो भी देखा था, तो वैल्यू में यूज वैल्यू हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि सनलाइट है, एयर है, वाटर है, ठीक है, दे आर अबंडेंट इन सप्लाई. क्लियर. सो इट हैज़ हाई यूज वैल्यू बट इट हैज़ लो एक्सचेंज वैल्यू. ठीक है, क्योंकि उसका सप्लाई जो है अनलिमिटेड है, इसलिए यूज वैल्यू तो उसकी हाई है बट एक्सचेंज वैल्यू क्या है, लो है. तो वो किस में होगा, नॉन इकोनॉमिक गुड्स में, क्योंकि हम उसके लिए कुछ पे नहीं करते हैं. एंड अनदर गुड्स इज इकोनॉमिक गुड्स. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में उससे बिल्कुल उल्टा आएगा कि विच कमांड एन एक्सचेंज वैल्यू इन दी मार्केट. सो दे कमांड एन एक्सचेंज वैल्यू एज दे आर स्कैर्स इन सप्लाई इन रिलेशन टू देयर डिमांड. क्योंकि ये लिमिटेड सप्लाई है इसका, ठीक है, तो आपको जो अभी एक्सचेंज वैल्यू आपको देनी पड़ेगी वो हाई होगी. नेचुरली इट हैज़ हाई एक्सचेंज वैल्यू, सो इट बिकम्स इकोनॉमिक गुड्स. सो इफ यू टेक एन एग्जाम्पल, gold, diamond, silver, all these are the example of economic goods. Then another type is durable and perishable goods. Now what is durable goods? So durable good is such which can be used for a long period of time and repeatedly. ठीक है, जिसको आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो, जिसे आप रिपीटेडली यूज़ कर सकते हो. If we take an example, then shoes, clothes, television, देन रेफ्रिजरेटर. ठीक है, उसको हम काफ़ी सालों तक यूज़ करते हैं. ऐसा नहीं कि इस साल ये रेफ्रिजरेटर यूज़ किया, नेक्स्ट ईयर बदल देंगे. ठीक है, वो बात अलग है कि अगर कोई अंबानी हो तो वो चेंज कर सकता है, बट हम कॉमन पीपल के लिए हम लंबे समय तक एक ही चीज़ को यूज़ करते हैं. ठीक है, सो इट इज़ ड्यूरेबल. एंड व्हाट इज़ पेरिशेबल? तो यू कैन नॉट प्रिजर्व द गुड्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन नॉट यूज़ द गुड्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट कैन नॉट बी यूज रिपीटेडली. फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो भी ग्रोसरी आइटम्स है, जैसे मिल्क है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ठीक है, हम उसे लंबे वक्त तक यूज़ नहीं करते. ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन तक आप उसको स्टोर कर सकते हो. आफ्टर दैट यू हैव टू यूज़ और यू हैव टू जस्ट डंप इट. क्लियर. सो इट कम्स अंडर पेरिशेबल गुड्स. देन अनदर टाइप इज प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स. नाउ प्राइवेट गुड इज सच विच इज़ ओन्ड बाय द सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल पर्सन. ठीक है, एक ही पर्सन जो है उसका ओनर है. अगर उसने उसको ऑक्यूपाई कर लिया, देन द अदर पर्सन विल नॉट बी एबल टू ऑक्यूपाई द सेम. सो इट बिकम्स प्राइवेट गुड्स. एंड व्हाट इज पब्लिक गुड्स? इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ आइदर गवर्नमेंट और आइदर सम अदर पीपल और सम ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, फॉर यूज ऑफ मेनी पीपल. ठीक है, these goods can be used by many people at the same time, but this, if one person has occupied the same, the other person cannot claim the same goods. ठीक है, so this is the difference between the private goods and public goods. If you take an example, then अगर आप किसी बिस्किट का पैकेट लेने के लिए जाते हो या फिर वेफर या चिप्स का पैकेट लेने के लिए जाते हो, तो आपने वो परचेज कर लिया, आपने मनी पे कर दिया. द सेम पैकेट कैन नॉट बी डिमांडेड बाय द अदर पर्सन. ठीक है, आपके हाथ में जो पैकेट है वो सेम पैकेट कोई और फिर नहीं ले सकता, वो ओनरशिप आपकी हो गई वंस यू हैव पेड द मनी. एंड इन केस ऑफ पब्लिक, इफ़ यू टेक एन एग्जांपल, पब्लिक गुड्स का एग्जांपल ले तो स्विमिंग पूल है. ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. इफ़ यू हैव द योर प्राइवेट स्विमिंग पूल इन योर विला और योर अपार्टमेंट और योर पेंट हाउस, ठीक है, इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट नॉर्मली जो स्विमिंग पूल जो गवर्नमेंट के अंडर में होता है, ये क्लब है, तो ये सब चीज़ें हैं, गार्डन है, पब्लिक गार्डन, तो वो सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में है या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन ने मिलके उसको बनाया है, तो इट इज़ फॉर द यूज़ ऑफ पब्लिक. ठीक है, एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, सो इट बिकम्स पब्लिक गुड्स. देन लास्ट टाइप इज कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स. नाउ व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स?
So consumer goods is goods which can satisfy a human want directly or indirectly. When a consumer consumes a goods and this good is capable of satisfying a particular want directly, then it is called consumer goods. Now गुड्स जो होता है अगर वो डायरेक्टली आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है मीन्स इफ इट इज़ इन द फाइनल फॉर्म, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में है, आप उसको डायरेक्टली जैसे ही परचेज करोगे उसको कंज्यूम कर पाओगे, उसका यूज़ कर पाओगे, देन इट बिकम्स कंज्यूमर गुड्स. नाउ इन केस ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर जो होता है वो प्रोडक्शन करता है. अब प्रोडक्शन करने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है, उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद ही वो उसको फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में लेकर आएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ द प्रोड्यूसर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्नीचर, सो ही नीड्स सम, उसको जो है